Hi students, how are you all? I think you all are keeping very fine and safe. Today's video is on the NEET questions from the chapter P block elements and it is for plus 2 students. So first question I have written, let's start the video. The first question says, in which of the following compounds nitrogen exhibits highest oxidation state? These are the compounds N2H4, NH3, N3H and NH2OH. So हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन and we have to find out in which of these compounds nitrogen exhibits highest oxidation state. So let's calculate one by one the oxidation state of nitrogen in these compounds. The first compound is N2H4. You all know that when hydrogen is combined with non-metals, then its oxidation state is taken as +1. आपको ये भी पता होगा कि हाइड्रोजन जब ये मेटल के साथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तभी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में होता है, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +1 लेना पड़ेगा. सो ऑन दैट बेसिस हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल दीज कंपाउंड्स. सो इन द फर्स्ट कंपाउंड, सो अगर हम नाइट्रोजन का X सपोज कर ले तो X into 2 plus 1 into 4, ये 4 हो जाएगा, that will be equal to 0 because the compound is a neutral one. So 2x will be equal to -4, so x will be equal to -2. So in this compound nitrogen का oxidation state कितना है? It is -2. Then comes compound B, NH3. NH3 में आप सबको पता है कि इसका हो जाएगा -3 बिकॉज हाइड्रोजन का +1 करके 3 हाइड्रोजन एटम +3, दिस इज -3. सो इसमें हो गया नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीडेशन स्टेट. देन इट इज C, N3H. ये जो N3H है इसको HN3 भी लिखा जाता है और इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड. तो हाइड्राजोइक एसिड में व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन? हाइड्रोजन का तो +1 ही है, तो लेट्स कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन. और इसका हम अगर x सपोज कर लेते हैं तो वी कैन राइट 3x + 1 इज इक्वल टू 0. सो x विल बी इक्वल टू -1/3. That means approximately you can say it is -0.9. And what will be the oxidation state of nitrogen in this compound? नंबर डी में n का अगर सपोज कर लिए x है तो x + 1 into 2 that is 2 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 बिकॉज हमें पता है कि ऑक्सीजन का ज्यादातर कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2 होता है. और साथ में हाइड्रोजन का +1 दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज द कंपाउंड एज ए होल इज न्यूट्रल. सो x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सो इट विल बी x +2 -2 +1 इज इक्वल टू 0. +2 -2 कैंसिल हो जाता है, सो x इज इक्वल टू -1. इफ वी अरेंज दिस A, B, C, D में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन सर सबसे छोटा कौन सा है? -3. सो -3 से बड़ा कौन है? -2. -2 से बड़ा कौन है? -1. -1 से बड़ा है -0.9. सो दैट मीन्स इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -0.9, that is the highest one. The second question students, the second question says nitrogen forms N2 but phosphorus does not form P2, however it forms P4. Reason is out of these options you have to choose the correct option. So हम सबको पता है कि नाइट्रोजन जो है because of its small size, high electronegativity and its ability to form p-pi multiple bond, it forms a triple bond in between two nitrogen atoms. There is a triple bond and that's how nitrogen molecule is formed. But in case of phosphorus, what happens? Why phosphorus does not exist as a diatomic molecule just like nitrogen? P2 क्यों नहीं फॉर्म करते हैं? phosphorus के लिए प्रॉब्लम ये है कि phosphorus जो है it is bigger in size than compared to nitrogen and bigger होने के नाते जो phosphorus के p orbitals है वो p orbitals के साइज बड़े हो जाते हैं and that's why phosphorus के लिए p-pi multiple bond फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. effectively overlapping नहीं हो पाते हैं between the p orbitals. Let me show you in case of nitrogen कि how the triple bond is formed. As you know there is a triple bond, one bond is sigma bond and बाकी दो बॉन्ड जो है pi bond है. किस तरह से वो बनते हैं? देखो जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम सबको पता है कि बॉक्स डायग्राम से दिखा देते हैं. इट इज
1s2, 2s2 and 2p3. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्बिटल्स. तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एटम के साथ दूसरा नाइट्रोजन एटम का जो ये ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं ये देखिए. अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये जो 2s ऑर्बिटल है यही आपका वैलेंस शेल है, जिसमें s शेल इज कंप्लीटली फिल्ड एंड p में जो है 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, यही फॉर्म करेगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड. किस तरह से, ये जो 3p ऑर्बिटल है एक नाइट्रोजन एटम का, ये सपोज आपने बना लिया, ये एक ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, ये आपका एक दूसरा ऑर्बिटल है और ये आपका जो थर्ड p ऑर्बिटल है. नाउ अनदर नाइट्रोजन एटम, इसका एक p ऑर्बिटल के साथ इस तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग होकर के एक जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा. इस नाइट्रोजन एटम का जो बाकी 2 p ऑर्बिटल्स है, एक तो ये है और एक आपका ये है, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में हो जाएगा साइडवेज ओवरलैपिंग, ये दोनों के साथ और इसके साथ बनेगा इसका, ये जो है इस तरह से है. तो इसी तरह से जो 2 नाइट्रोजन एटम है इनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है और बाकी 2 जो बॉन्ड है दे आर पाई बॉन्ड्स. तो ये पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन में ये जो नाम हमने लिया पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड और कुछ नहीं है, एक के p ऑर्बिटल के साथ दूसरा का p ऑर्बिटल का जब साइडवेज ओवरलैपिंग होकर के पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं तो उसी को ही हम बोलते हैं पी पाई मल्टीपल बॉन्ड. तो नाइट्रोजन के लिए जो p ऑर्बिटल्स है दे कैन अंडरगो साइडवेज ओवरलैपिंग बिकॉज द नाइट्रोजन एटम इज स्मॉल इन साइज, so that is why the orbitals are also small and that's why the p orbitals being small they can effectively overlap with one another and they can form 2 pi bonds. But in case of phosphorus atom it's not possible, so phosphorus cannot form p pi multiple bond due to its bigger size, the orbitals are bigger in size, so they cannot undergo overlapping effectively. So that is why our option B will be the correct option. So this is why phosphorus does not form p2 but then phosphorus forms single bond with one another and phosphorus इस तरह से p4 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. phosphorus 4 phosphorus एटम इकट्ठा सिंगल बॉन्ड बना के p4 मॉलिक्यूल बना के एक टेट्राहेड्रल फॉर्म ले लेते हैं और इस तरह से phosphorus जो है p4 मॉलिक्यूल बनाते हैं जहां पे सारे phosphorus एटम्स एक दूसरे के साथ सिंगली बॉन्डेड है. तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी विल सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 3 says urea reacts with water to form A which decomposes to form B. B when passed through Cu plus 2 aqueous deep blue color solution C is formed. What is the formula of C from the following? Now first of all तो यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2. यूरिया का रिएक्शन पहले हमें लिखना है वाटर के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद यूरिया क्या फॉर्म करते हैं आगे हम रिएक्शन लिखते हैं. सो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन यूरिया एंड वाटर. NH2CO NH2 यूरिया plus water will form this compound. This compound is unstable and it decomposes on its own. Decompose करते हैं and forms ammonia and carbon dioxide gas. Now ये जो एमोनिया है तो आपका यूरिया तो हो गया है यहाँ पे और जो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये जो है कंपाउंड ए बनाया है ये है आपका ये कंपाउंड ए एंड इसके बाद डिकम्पोज करने के बाद ये बन रहा है आपका बी. दिस इज योर बी. नाउ बी जो कि एमोनिया गैस है, बी को जब हम पास कर रहे हैं कॉपर प्लस 2 एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू Cu प्लस 2 एक्वस, दैट मीन्स कॉपर का कोई सॉल्ट सोल्यूशन है, कॉपर जिसमें प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके थ्रू जब पास किया जाएगा तो बनेगा दिस वन Cu NH3 होल 4 प्लस 2 ये बनेगा. इसके लिए बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे 4 लगाएंगे
तो ये जो कॉम्प्लेक्स कैटायन बना है, कॉम्प्लेक्स कैटायन यहाँ पे बना है, इसका नाम है टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन, टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन। इसी का कलर है डीप ब्लू, इसका कलर डीप ब्लू कलर है। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 says a compound X upon reaction with water produces a colorless gas Y with rotten fish smell. Just notice here the gas which is produced, it is having a rotten fish smell. Next they are saying gas Y is absorbed in a solution of copper sulfate to give Cu3P2 as one of the products. Now आपको प्रेडिक्ट करना है कंपाउंड X को, इनमें से ऑप्शन में से आपको चूज करना है। Now just see कि जो गैस का स्मेल रॉटन फिश की तरह है, तो उस गैस का वो गैस कौन सा गैस होगा? और फिर ये गैस जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये कॉपर फॉस्फाइड को प्रेसिपिटेट आउट कर रहा है, Cu3P2 बन रहा है। तो ये गैस जरूर फास्फोरस का ही कोई कंपाउंड है, और ये फास्फोरस का कंपाउंड जो कि गैसियस फॉर्म में है वो फॉस्फिन गैस है जो कि PH3 है, और इसी का जो स्मेल है वो जो है रॉटन फिश की तरह है। रॉटन एग की तरह जब स्मेल कहा जाता है तो आपको समझना है इट इज H2S गैस। हम सबको पता है कि H2S गैस का जो स्मेल है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसका स्मेल है रॉटन एग की तरह, और रॉटन फिश की तरह स्मेल है, हाईली पॉइजनस है, फास्फोरस का कंपाउंड है, दैट इज फॉस्फिन गैस जिसका फॉर्मूला है PH3। सो PH3 गैस जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर, एंड इनमें से व्हिच कंपाउंड होगा? इनमें से ये कंपाउंड होगा कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड और वाटर का रिएक्शन से बनते हैं PH3 गैस। सो रिएक्शंस हम लिखते हैं Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस वाटर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3 जो कि फॉस्फिन है, फॉस्फिन गैस। बैलेंस करने के लिए हम इसमें जो है 3 लगा देते हैं, इसमें 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन जो है 12 हो जाएगा इस साइड में, तो यहां पे आपको 6 लगाना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ इट इज बैलेंस्ड। नाउ ये आपका फॉस्फिन गैस बना है। अब ये फॉस्फिन गैस जो है व्हेन इट रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट प्लस फॉस्फिन, देन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? कॉपर फॉस्फाइड Cu3P2, इसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है और साथ में बनते हैं H2SO4। H2SO4। सो ये रिएक्शन है। सो व्हिच वन विल बी कंपाउंड X? कंपाउंड X आपका ये A होगा, कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड और वाटर का रिएक्शन में बन रहा है फॉस्फिन गैस जो कि रॉटन फिश की तरह स्मेल है जिसका। दिस इज योर X and this is your Y. Y, colorless gas with rotten egg smell, and then it is absorbed in copper sulfate solution to give this one as one of the products. So आपको predict the compound X आपको बोला है, तो हमने X को predict कर दिया, Ca3P2 is X. The next question students, the next question says identify the incorrect statement related to PCl5 from the following. Number 1 is PCl5 molecule is non-reactive. Number B, 3 equatorial PCl bonds make an angle of 120 degree with each other. Number 3, 2 axial PCl bonds make an angle of 180 degree with each other. And number D में है axial PCl bonds are longer than equatorial PCl bonds. तो आपने फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो गलत है। तो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। PCl5 का स्ट्रक्चर आप सबने पढ़ा है बुक में कि PCl5 का स्ट्रक्चर जो है इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर इसका ऐसे होगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, फास्फोरस
Cl, 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 and 2 will be the axial bonds above the plane and below the plane, Cl and Cl. Now angles you can see, ये जो एंगल है बिटवीन द इक्वाटोरियल बॉन्ड्स, ये जो बॉन्ड्स है ये वाला और ये वाला, इनको कहा जाता है इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। ये तीनों मिलके ये तीनों बॉन्ड से बना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये जो बॉन्ड्स है इनको कहा जाता है, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, इनको कहा जाता है इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। तो इनके बीच में एंगल कितना है, ये जो बॉन्ड्स के बीच में एंगल है, ये एंगल है 120 डिग्री। और ये जो आपका एक एक्सियल बॉन्ड जो है अबव द प्लेन है, एक है बिलो द प्लेन, इनके साथ ये जो एक्सियल बॉन्ड है इनके साथ इक्वाटोरियल बॉन्ड का एंगल कितना होगा, इट इज 90 डिग्री। इसके साथ भी ये सारे इक्वाटोरियल बॉन्ड का एंगल 90 डिग्री होगा, इसके साथ भी सारे इक्वाटोरियल बॉन्ड का एंगल जो है 90 डिग्री होगा। तो ये तो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। अब PCl5 मॉलिक्यूल के बारे में जो आपको स्टेटमेंट्स दिया है, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है इट इज नंबर 1, बोल रहा है कि PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज यू कैन सी, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा PCl5 का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो जो एक्सियल बॉन्ड्स है, ये जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ये जो बॉन्ड्स है दे सफर रिपल्शन फ्रॉम 3 बॉन्ड पेयर्स। ये 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड पेयर से इनको जो है रिपल्शन ये सफर करते हैं, ये वाला भी ये वाला भी। इनके बीच में इक्वाटोरियल बॉन्ड्स के बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगा, बिकॉज इनके बीच में बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। सो व्हेन द बॉन्ड एंगल्स आर 120 डिग्री, उसमें कोई रिपल्शन नहीं है। लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड है उसके साथ हर एक इक्वाटोरियल बॉन्ड का एंगल जो है 90 डिग्री है, सो देयर विल बी रिपल्शन, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। एंड दैट इज व्हाई ये जो एक्सियल बॉन्ड्स है दे आर लिटिल लॉन्गर, क्योंकि ये ज्यादा रिपल्शन सफर करते हैं और इसी वजह से ये थोड़ा सा लॉन्ग भी होता है, ये जो है वीक भी होते हैं, ये अनस्टेबल भी होता है, इनमें इतना स्टेबिलिटी भी नहीं होती है। एंड दैट इज व्हाई जब PCl5 को हीट किया जाता है तो ये जो एक्सियल बॉन्ड्स है व्हिच आर लिटिल लॉन्गर ड्यू टू मोर रिपल्शन फ्रॉम द equatorial bond pairs. Equatorial bonds on the other hand they are suffering repulsion from 2 bond pairs. ये जो एक्सियल बॉन्ड, एक बॉन्ड है ऊपर एक बॉन्ड नीचे है, ये 2 बॉन्ड पेयर से इक्वाटोरियल बॉन्ड जो है दे आर सफरिंग रिपल्शन फ्रॉम 2 बॉन्ड पेयर्स। सो व्हेन PCl5 इज हीटेड, PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो वो इजीली जो है PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी स्टेटमेंट तो सारे सही है, आप देख ही रहे हो। 3 इक्वाटोरियल PCl बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, वो भी सही है। 2 एक्सियल बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री एंगल है। और एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वाटोरियल PCl बॉन्ड्स, ये भी सही है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स दे आर सेइंग which of the following oxo acids of phosphorus has strongest reducing property. These are the oxo acids they have given. इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि which of these oxo acids is having the strongest reducing property. Now phosphorus forms many oxo acids. तो ये oxo acids में जिन oxo acid में जो pH bonds है, pH bond if it is there in an oxo acid, then that oxo acid will be having very high reducing character, very high reducing property. तो इनका स्ट्रक्चर पहले हम बना लेते हैं कि किन ऑक्सो एसिड में जो है सबसे ज्यादा नंबर में pH बॉन्ड्स है, वही होगा ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस हैविंग द हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर। सो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं जो आपका H3PO2 है उसका स्ट्रक्चर, जो नंबर C है H3PO2, इसका स्ट्रक्चर है ये सारे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये H3PO2 का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम बनाते हैं H3PO3 का स्ट्रक्चर, H3PO3 इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ये इसके बाद है H3PO4, ये है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2 का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा P और तीनों जो है OH बॉन्ड होगा इसमें।
और ये जो है इसका नाम है, नंबर ए में जो है H4P2O7, इसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसको बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, ये जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का दो मॉलिक्यूल इस तरह से अगर आपने एक और मॉलिक्यूल लिख दिया, P डबल बॉन्ड O, एक OH, ये एक OH और एक OH, और इनके बीच में कंडेंसेशन अगर कर दिया और एक मॉलिक्यूल वाटर अगर यहां से आपने निकाल दिया तो POP लिंकेज बन जाएगा और बन जाएगा आपका ये वाला पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। तो हम बना लेते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। H4P2O7 इसका स्ट्रक्चर है दिस इज H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इनमें से आप देखिए सबसे ज्यादा नंबर में पीएच बॉन्ड किसमें है, सबसे ज्यादा नंबर में पीएच बॉन्ड जो है H3PO2 में है, जो कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। सो दिस वन विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। बाकी इसमें देखो एक है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। सो दिस वन इज ऑल्सो हैविंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बट देन हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज हैविंग stronger reducing character than compared to phosphorus acid, orthophosphorus acid, because it contains more number of pH bonds in it, and acids containing pH bonds, they have strong reducing properties. So which option is correct? Option C is the correct option. This question says which is the correct thermal stability order for H2E? E stands for oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. These are the group 16 elements. तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स है उनका थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको 4 दे दिए गए हैं ABCD में। आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से देखो पहले तो हम लिख लेते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स का हाइड्राइड्स जो है ये है H2O, फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन, उसके बाद H2S सल्फर, उसके बाद H2AC ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये है आपका हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इनमें जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे, ऑक्सीजन से लेकर के आप जैसे ही पोलोनियम तक जाओगे, साइज ऑफ द एलिमेंट्स आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। सो ये जो He बॉन्ड है, E स्टैंड्स फॉर द एटम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। तो E एटम का साइज जैसे जैसे ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो ये जैसे जैसे आप जाओगे तो साइज ऑफ द एटम्स विल ग्रेजुअली इंक्रीज, एंड एज द साइज ऑफ द एटम ग्रेजुअली इंक्रीजेस तो ये जो He बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा, और He बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा तो बॉन्ड विल ब्रेक बाय हीटिंग। तो दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, H2O विल बी द मोस्ट स्टेबल वन, एंड देन ग्रेजुअली द बॉन्ड स्ट्रेंथ एज द He बॉन्ड स्ट्रेंथ, दैट मींस HS, HAC, HTE, H2, HPO, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। सो द थर्मल स्टेबिलिटी भी ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिकॉज इसमें देखो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका दिखाया है, वाटर, वाटर के बाद H2S, उसके बाद H2AC, H2TE, H2PO। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ओलियम फ्रॉम द फॉलोइंग। ओलियम का फॉर्मूला आपने यहां से पहचानना है, और ऑब्वियसली oleum is this H2S2O7. This is the formula of oleum. सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो आपने बुक में पढ़ा है उसमें लास्ट स्टेप में जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड को इट इज एब्सॉर्ब्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऊपर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे किया जाता है और दोनों के बीच में रिएक्शन होकर के ओलियम बनते हैं H2S2O7, और ये ओलियम को डायल्यूट करके जो है सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। सो वहां पे भी आपने पढ़ा ही है कि ओलियम का फॉर्मूला है H2S2O7। बाकी का भी नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसका नाम है सल्फ्यूरास एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम है पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स, if you have enjoyed the video, then please give it a like
And if you want to watch the videos of chemistry only for 10th, 11th and 12th classes, then please visit my channel Samjho Chemistry Detail में, and its link is given in the description box. Thanks for watching.